نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصہ قرآن کریم کی اس سیریز میں آج ہم نے 12واں سپارہ شروع کرنا ہے، اور اس 12ویں سپارے کے ساتھ ساتھ سورہ یونس ختم ہو کے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود۔ ہود علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ وہ نبی کا نام ہے جو بھیجے گئے تھے قوم عاد کی طرف۔ اس صورت کے بارے میں اور کچھ اور صورتوں کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آپ پہ بڑھاپے کے اثرات دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کے ساتھ کچھ اور صورتوں کا ذکر کیا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے مضمون ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں غور اور فکر، اور جن کے بارے میں سوچ سوچ کے مجھے بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی سکون سے زندگی نہیں گزارتا، جو آدمی ٹینشن میں رہ کے زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی بوڑھا جلدی ہو جاتا ہے، اس میں بڑھاپے کے اثرات جلدی آ جاتے ہیں۔ سورہ ہود، یہ ہود علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے یہ صورت۔ اس میں 123 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں باقی مکی صورتوں کی طرح اس میں ایمان بالآخرت کا موضوع ہے، اور رسولوں کا گزشتہ رسولوں کا بنی اسرائیل کا کم اور باقی رسولوں کا زیادہ ذکر ہے۔ ان رسولوں کا جن کا واسطہ عرب سے پڑتا تھا، مشرکین سے، قریش سے پڑتا تھا، ان رسولوں کا ذکر ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے کچھ ہدایات ہیں، اور نافرمانوں کے لیے اس میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر کوئی جانور، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یعنی ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، جتنا رزق اس کے لیے مقرر ہے وہ اسے مل کے رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، اس دنیا میں انسان کا رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے۔ ہم اگر اس سے آگے آگے بھاگیں اس رزق کو چھوڑ کے، پھر بھی وہ رزق ہمارے پیچھے بھاگے گا اور ہمیں مل کے رہے گا۔ تو رزق کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ، ایک حد سے زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو کے، بندہ رازق سے غافل ہو کے رزق کے پیچھے لگ جائے۔ رزق کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ رازق ہی سے غافل ہو جائے۔ اور پھر دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کی مستقل رہائش کدھر ہے، اور وہ ابھی اس وقت کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں جو کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا گیا، اور اس میں ایک خاص بات کا ذکر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کر رہے تھے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ قرآن کی کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں۔ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، ان کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اور یا ان کی تعویل وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں بہت زیادہ رسوخ رکھتے ہیں، ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
کہ اب हम इसके बारे में सवाल करना शुरू कर दें कि अल्लाह का अर्श पानी पर, पानी कहाँ था, उस वक्त पानी कहाँ था, और फिर अल्लाह का अर्श पानी पर कैसे था, वगैरह वगैरह, ये हम सवाल करना शुरू कर दें, तो एक हद से ज़्यादा इसके बारे में सोचना हमें गुमराही की तरफ लेके जा सकता है। इंसान की कमज़रफ़ी अल्लाह ताला ने बयान की है कि इंसान इतना कमज़रफ़ है कि जब उस पर कोई तकलीफ़ आती है तो वो शिकवा करना शुरू कर देता है अल्लाह से, और जब अल्लाह हम इसे नेमतों से नवाजते हैं तो अपने अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर देता है, अपने ऊपर इतराना शुरू कर देता है। उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं, मेरे पे वो तकलीफ़ भी आई थी। तो इंसान इतना कमज़रफ़ है। मुशरिकीन के कुछ एतराज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बहुत से एतराज़ात वो करते रहते थे। कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पे उनका जिक्र आया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा उनके एतराज़ात से परेशान भी हो जाते थे। और पहले भी इनका जिक्र गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि ये जो लोग मुतालबा कर रहे हैं फरमाइशी मोजज़ात का, वो आ जाएं। तो वहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई थी कि आपका काम जो है वो इनको हक की तरफ खींच के लाना नहीं है, बल्कि आपका काम इन तक हक बात पहुंचा देना है। तो यहाँ भी ये बात कही जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की जा रही है कि फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैका व दाइकुम बिही सदरुक, कि ये लोग जो कहते हैं, ये लोग जो एतराज़ात करते हैं, आपका सीना इससे तंग हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आप ये कहीं कहीं आप ये चाहते हैं कि आप वही का कुछ हिस्सा इनके लिए छोड़ दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों कर दें? अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़। अब ये एतराज़ात का जिक्र है कि वो लोग क्या कहते थे कि इस पे, ये नबी अगर है तो ये इतना मुफलिस क्यों है, इस पे कोई खजाना आसमान की तरफ से नाजिल क्यों नहीं होता, औ जा माहु मलक, या इसके साथ फरिश्ते चलते फिरते क्यों नहीं है, फरिश्ते इसके बॉडीगार्ड क्यों नहीं है। और फिर वो ये भी इतराज़ात करते थे, हम यक़ूलून अफ्तराहु, कि इसने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाउज़ुबिल्लाह, ये कुरान जो है ये अपने पास से गढ़ लिया है, खुद बैठ के इसको लिखते रहते हैं और फिर हमें आके कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने इनको ये चैलेंज दिया है यहाँ पे, शायद तीसरी दफ़ा, कि तुम तो बेआशरी सुवार मिन मिस्लिही, इस जैसी कोई 10 सूरतें ही बना के दिखा दो। तो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना कर सकोगे। इसके बाद कुछ सआदतमंद लोगों और कुछ बदनसीब लोगों का तज़किरा है। वो लोग, वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उनसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो, जिन्होंने अल्लाह ताला पर बहतान बांधा। सूरह हूद आयत 18 से 24 तक। हाँ जी। इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठा बहतान बांधते हैं, और अल्लज़ीना कज़्ज़बू अला रब्बिहिम, और जो अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं, ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत हो। और ये वो जालिम हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं, और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के सीधे रास्ते में टेढ़पन पैदा करने के मौके ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से इस हक को अपने अपने रास्ते से हटा दिया जाए, कहाँ से इस हक को भी मोड़ के बातिल की तरफ फेर दिया जाए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीना फिल अर्द वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं होगा, एक इनका मददगार अल्लाह ही है जिसका साथ वो छोड़ चुके हैं, इसके अलावा उनकी और कोई मदद करने वाला नहीं होगा। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, इनके लिए दुगना अजाब होगा, दोहरा अजाब होगा। और इसके उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। और ये लोग, यही लोग बदनसीब हैं और यही लोग खसारे में रहने वाले हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, आखिरत में ये सबसे ज़्यादा
नुकसान में रहने वाले लोग होंगे। इसके मुकाबले में इन लदीन आमनु आमिलुस्सालिहात, जिन जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, वो अखबतु इला रब्बिहिम, और अपने आप अपना सर अल्लाह के आगे झुकाए रखा, अल्लाह ताला के अहकामात के आगे अपना सर झुकाए रखा। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। हम फिहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। इसमें एक बात आपने नोट की होगी कि इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात, आमनु व आमिलुस्सालिहात, ये दो चीज़ें फलाह के लिए, निजात के लिए, जन्नत के लिए, कामयाबी के लिए लाजिम और मलजूम है। इनमें से कोई एक चीज़ अगर ना हुई तो कामयाबी मशकूक हो जाएगी। अगर ईमान ना हुआ, सिर्फ अमल साले हुए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये अमल साले उनके सारे हवा में उड़ जाएंगे, उनको कोई काम नहीं देंगे। और अगर ईमान हुआ और अमल साले ना हुए, तो ये भी बड़ी मुसीबत में डालने वाली चीज़ है। पता नहीं कितना अरसा इंसान को जहन्नम की आग में रहना पड़ेगा, जहन्नम की सजाएं काटनी पड़ेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत से लगाओ, ये पिछले आयत का टॉपिक है शायद। हाँ, ये पिछले पारे का टॉपिक है, यहाँ से मैंने रिमूव नहीं किया इसे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले भी गुजर चुका है। यहाँ पे कुछ तफसील के साथ इनका तज़किरा आया है। पहले तो कुछ आयात, कुछ चंद आयात में आया था। यहाँ पे कुछ मज़ीद तफसील के साथ आया है कि नूह अलैहिस्सलाम के लोग उन पे ये एतराज़ करते थे। और ये तकरीबन हर नबी पे एतराज़ हुआ है। कौन सा एतराज़? कि तुम तो हम जैसे ही बशर हो, हम जैसे ही इंसान हो। कल कल तो तुम हमारे साथ उठते बैठते थे हमारी मजलिसों में, और हमारी खुशी गमी में हमारे साथ शरीक होते थे। कल तुम हमारी तरह चलते फिरते थे बाजारों में। और आज तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझ पे अल्लाह की तरफ से वही आती है। तो ये कैसी अजीब बात है। और दूसरा एतराज़ वो करते थे कि तुम्हारे, और ये भी तकरीबन हर नबी पे ही ये एतराज़ हुआ है, कि तुम्हारे मानने वाले तो ये हमारे सबसे हकीर तरीन लोग हैं, जलील तरीन लोग हैं तुम्हारे मानने वाले, तुम पे ईमान लाने वाले। अगर ये ईमान की नेमत ऐसी ही बड़ी थी तो हम शरीफ लोगों को, हम इज़्ज़तदार लोगों को ये नेमत क्यों नहीं मिली? इज़्ज़तदार लोगों को नबूवत क्यों नहीं दी गई और तुम जैसे लोगों को क्यों दी गई है? तो ये नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा। यही चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी कौम ने कही थी। फिर जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, और जो मामला पीछे हम पढ़ चुके हैं, दो जगहों पे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ चुका है पहले। तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया जब उनका वक्त पूरा हो गया। वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन। और नूह अलैहिस्सलाम को हमने ये खबर दी, ये पैगाम दिया कि अब तुम्हारी कौम में से कोई और बंदा ईमान नहीं लाएगा, बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वही होंगे। तो क्या करो, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ। व फला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और इन लोगों को मत बुलाओ, इन लोगों को मत इसकी इस कश्ती बनाने के लिए इन लोगों की मदद मत लो। इन्नहुम मुगरकून, ये लोग गर्क होने वाले हैं। अब इनकी इस कौम की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। अब छोड़ दो इनकी फिक्र करना, इनको इनको गर्क ही होना है अब। तो वयसनाउल फुल्क, ये कश्ती बनाते थे नूह अलैहिस्सलाम। और जब भी कोई इनमें से, ये इस कौम के सरदार और इस कौम के लोग गुजरते थे इनके पास से, उनको देखते थे नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए, तो सखिरो मिन, उससे उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये कश्ती कहाँ चलाओगे? पानी कहाँ है? इतना बड़ा समुंदर तो तुम्हारे पास है नहीं, तो कश्ती कहाँ चलाओगे? तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अभी तुम हंस लो हम पे, अनकरीब हम तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि, और तुम करीब जान लोगे कि किस पे अल्लाह का अजाब आता है और कौन जलील होता है और किसका मजाक उड़ाया जाता है। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, और फिर वो वक्त आ गया जिसमें जो हमारे हुक्म का, हमारे
अम्र का वक्त आ गया। वफार तनूर, और तनूर से, ये तनूर जो जिसमें नान लगाए जाते हैं, रोटियां लगाई जाती हैं, और तनूर से पानी उबलने लगा, और फिर आसमान से पानी बरसने लगा, और ज़मीन से पानी उबलने लगा। और ये कौम और फिर कश्ती जो है वो कश्ती के लिए भी पानी आ गया। और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हर चीज़ के, हर जानदार चीज़ के दो दो जोड़े इसमें रख लो, और और खुद भी, और तुम्हारे साथ जो लोग ईमान लाए हैं उनको भी इसमें बिठा लो। वमा आमना माअहु इल्ला कलील, और उसके नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत थोड़े लोग ईमान लेके आए थे। और फिर कहा गया कि वक़ाल इरकबू फीहा, और सवार हो जाओ इस कश्ती में, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम के साथ जो इसे चलाने वाला है और इसे ठिकाना फराम करने वाला है। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और फिर इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के साथ मुकालमा बयान किया गया है। कहा गया कि वनादा नूह इब्नहू, और जब कश्ती चलने लगी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी और कहा, या बुनैया रकब माना, ए मेरे बेटे, या बुनैया। ये जब हम बच्चों को बुलाते हैं अपने, तो प्यार के साथ बुलाते हैं ना। तो ये नहीं कहा या इब्नी, कहा या बुनैया। बुनैया का मतलब होता है मेरे प्यारे बेटे, यानी वो उस वक्त भी उससे मोहब्बत करते थे अपने बेटों की तरह। तो उससे कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरों का साथ मत दो। काला, उसने कहा, काला सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मेरी हिफाजत करेगा पानी से। देखें, अब वो मादी वसाइल तलाश कर रहा था, अल्लाह ताला को छोड़ के मादी वसाइल तलाश कर रहा था। तो काल ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, और उस नूह अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आज अल्लाह के अमर से कोई भी नहीं किसी को बचा सकता, इल्ला मन रहीम, सिवाय जिस पे अल्लाह ताला अपना रहम कर दे। बहरहाल वो उनका नूह अलैहिस्सलाम के बेटा भी गर्क हो गया। इसके बाद एक आयत, ये आयत जो आई है इसके बाद, इसको हम बाद में देखते हैं। एक आयत छोड़ के दोबारा अल्लाह ताला से नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बारे में बात की और कहा, वनादा नूह रब्बहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। फ़क़ाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली व इन वअदकल हक़, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, और अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तूने कहा था कि तुम्हारे अहलो अयाल को बचा लूंगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह तो बेहतर फैसला करने वाला है, मेरे बेटे को बचा ले। काला या नूह, अल्लाह ताला ने कहा, ए नूह, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये जो मुकाम है ना, ये जो बात है, ये समझने की है कि कौन खूनी रिश्ते ज़्यादा अहम होते हैं या दीनी रिश्ते ज़्यादा अहम होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरा बेटा मेरा अहलो अयाल है, मेरा बेटा मेरे ख़ानदान में से है, अल्लाह उसे बचा ले, तूने वादा किया था कि मैं तेरे ख़ानदान को बचा लूँगा। तो काला, अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके अमाल नेक नहीं है, वो काफिर है, वो तुम्हारे खानदान में से नहीं है। बेशक वो तुम्हारा बेटा है, बेशक तुमने उसे पैदा किया है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे खानदान का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे खानदान के लोग वो हैं जो तुम पे ईमान लेके आए हैं। ये बहुत अहम बात है, इसको समझने की है। अगर मेरे पास वक्त होता तो इसको 3-4 दफ़ा रिपीट करता आपके सामने। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, तुम मुझसे उस चीज़ के बारे में सवाल मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो इसके बाद अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस बात से, ये जो दुआ की थी, उन्होंने रुजू किया और कहा कि इन्नी आऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसे सवाल से, ऐसी दुआ से जिसका मुझे इल्म ना हो। अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर कि कि कहीं मैं भी खसारा उठाने वालों में से ना हो जाऊं। तो ये जो ऊपर आयत गुजरी है ना,
वकीला, इसी पारे में आपको इसी सफ़े पे नज़र आ रही होगी आपको। वकीला या अर्ज़ु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जुदिय्यि वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये आयत बहुत ही अहम आयत है अरबी अदब के लिहाज से, और बहुत ही अहम आयत है साइंटिफिकली। इसमें साइंस के बहुत से साइंस बयान किए गए हैं। और इसके ये जो चार अल्फाज हैं, या अर्ज़ुबलाई माअकी वया समाउ अक़लिई, ये पांच अल्फाज हैं। इन पांच अल्फाज में वाटर साइकिल पूरा बयान किया गया है। आप हमने सबने पढ़ा होगा सिलेबस के अंदर कि पानी का जो चक्कर होता है, पानी के समुंदर से उठता है, आसमान पे बादल बनते हैं, फिर आसमान से ज़मीन पे बरसता है, और ज़मीन से फिर समुंदर में जाता है, और फिर ये सारा साइकिल जो है इन अल्फाज के अंदर बयान किया गया है। इस आयत का वैसे तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, इस पे डिटेल में बात करने का वक्त नहीं है। और कहा गया जब ये सारा कुछ हो गया, कश्ती के अलावा उस दुनिया पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे सबको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, और सिर्फ उस पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग बचे थे जो लोग कश्ती में सवार थे। और फिर क्या हुआ, वकील या अर्ज़ु ब्लई माअकी, और कहा गया कि ए ज़मीन अपना पानी सक कर लो, अपना पानी खींच लो। वया समा अक़लिई, और ए आसमान रुक जाओ, थम जाओ। वगीज़ल माउ, और पानी ख़त्म हो गया। वक़ुज़ियल अम्रु, और अल्लाह का अमर जो था वो तमाम हो गया। वस्तवत अलल जूदी, और ये कश्ती जो थी वो जूदी पहाड़ पे रुक गई। वकील, और ये जूदी पहाड़ की तस्वीर आपको पिछले 9वें पारे में दिखाई गई थी, 9वें पारे में थी या 8वें में थी। वकील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और कहा गया कि तबाही हो, बर्बादी हो, दूरी हो जालिम कौम के लिए। ये था नूह अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र जो इस पारे में आया है। इसके बाद हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। ये हम इसको पहले देख चुके हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, इसको भी हम पहले देख चुके हैं। ज़्यादा इसको तफसील के साथ यहाँ भी इतना बयान नहीं किया गया, वही बातें आई हैं जो पहले हमने देखी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम लूत का तज़किरा इस पे आया है थोड़ा तफसील के साथ, उन पे अजाब का तज़किरा। तो उसकी तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे अजाब भेजा गया। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि उनकी कौम जो थी वो हम जिन्स परस्ती की बद इखलाकी में वो कौम गिरी हुई थी, उसका शिकार थी। और ये एक नशे की हद तक था उसकी कौम के अंदर। तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब कैसे दिया, अल्लाह ताला ने दो खूबसूरत नौजवान लड़के भेजे। ये आप ये भी जानते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम एक ही ज़माने के थे। मैंने आपको बताया था कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही इनको उस जगह पे भेजा था जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा था, मुकर्रर किया था। अल्लाह के हुक्म से ही भेजा होगा यकीनन। तो ये जो दो लड़के थे ये पहले आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने सलाम किया। क़ालू सलामा क़ाल सलामुन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम का जवाब दिया और कहा कि तुम मुझे थोड़े अजीब से लोग लगते हो। तो बहरहाल वो बैठ गए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन एक बछड़ा, यानी कोई सवाल नहीं किया, अगला सलाम के बाद और कोई सवाल नहीं किया। ये दो लड़के जो थे ये आके बैठे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन जाके बछड़ा एक जो है वो इज्ल, यहाँ भी इज्ल का जिक्र आया है, एक बछड़ा भून के फ्राई करके ले आए उनके पास, उनको खिलाने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए। इससे पता चलता है कि ये लोग कितने मेहमान नवाज थे। तो जब वो उन लोगों ने, अब वो दो लड़के थे लेकिन थे वो फरिश्ते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी पता नहीं था कि वो फरिश्ते हैं। तो जब वो खा ज़ाहिर है फरिश्ते अब खाना तो नहीं खाते, उनको खाना खाने की हाजत नहीं होती। तो जब वो खाने की तरफ हाथ नहीं उन्होंने बढ़ाया,
تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ کھانا تو وہ نہیں کھاتا جو دشمن ہو، جو دشمن ہو وہ کسی کے گھر جا کے کھانا نہیں کھاتا، یہ شاید ان کا رواج ہوتا ہوگا، یہ ان کی کوئی علامت ہوتی ہوگی ان کے ہاں اس معاشرے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا یہی الفاظ آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور بیچ میں اب وہ لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن کیوں آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں آئے؟ یہ ان کا رستے میں ایک آپ کہہ لیں پٹ سٹاپ تھا، جہاں پہ وہ رکے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، اور کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت انہوں نے اس وقت دی۔ تو ان کی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں حضرت سارہ، وہ کھڑی وہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ کھڑی سن رہی تھی ان کی بات پردے میں، تو ابراہیم وہ فسکت وجہہا اپنے فسکت وجہ اور اپنے چہرے پہ ہاتھ مار کے، جیسے وہ عورتوں کی وہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ مار کے کہنے لگی آئے خائے میرا بیٹا ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے میری۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کا خوف جو ہے وہ ختم ہوا، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ خوف جو ختم ہو گیا اور ان کو بشارت مل گئی اور وہ خوش ہو گئے، تو جب اس طرف سے ان کو تسلی ہو گئی، تو یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یعنی کس سے کرنے لگے؟ یہ نہیں کہا کہ ان فرشتوں سے کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگے۔ یہ ہے ایک خلیل کا مقام۔ کوئی عام آدمی کسی عام آدمی کے بارے میں، بلکہ ایون کسی نبی کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے، اللہ تعالیٰ سے بحث کرے، اللہ تعالیٰ سے تکرار کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں، ان کو مزید مہلت دے دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے کہہ دیا ہے ان ابراہیم لحلیم، وہ کتنے حلیم طبع شخص تھے، اور اس لیے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مزید مہلت مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے ان کے بارے میں، وَإِنَّهُمْ لَآتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ان پہ عذاب آ کر رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، اے اللہ اس میں تو لوط بھی ہے، یعنی اپنے بھتیجے کے بارے میں بات کرنے لگے، اے اللہ وہاں تو لوط بھی ہے اور آپ وہاں عذاب بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے ابراہیم ہم لوط کو اور اس کے اہل و عیال کو، اس کے خاندان کو وہاں سے نکال لیں گے، ہاں اس کی جو بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ بہرحال یہاں سے ان کو بشارت دے کے یہ دو لڑکے پھر نکلے اور لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے، اور وہاں جا کے بھی یہ اسی طرح نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے اور لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، اور ان کو بولا کہ ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، یہاں پہ رات گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام جو اپنی قوم کے بارے میں جانتے تھے، انہیں وہاں پہ چھپا کے رکھا، اور یہ پوری اپنی طرف سے پورا بندوبست کیا کہ کہیں یہ خبر باہر نہ نکل جائے کہ میرے گھر دو نوجوان لڑکے آئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی
ने ये खबर बाहर पहुंचाई लोगों को कि इस तरह बहुत खूबसूरत लड़के आए हैं लूत के घर। तो हुआ क्या कि उस वो रात का वक्त था और सारे लोगों ने इन लोगों ने हल्ला बोल दिया लूत अलैहिस्सलाम के घर। उन्होंने कहा कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि यानी वो मेहमान थे लूत अलैहिस्सलाम के, और अभी तक लूत अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते थे कि वो फरिश्ते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे लोगों से कहा कि मुझे रुसवा ना करो, ये मेरे मेहमान हैं। मेहमानों की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, ये लाजिम है हम पे। और तो इनके बारे में मुझे रुसवा ना करो। ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल हैं। इनके इनके साथ निकाह करो, इनके साथ लुत्फ अंदोज हो लो, लेकिन मुझे रुसवा ना करो। तो जब लूत अलैहिस्सलाम से ना बन पड़ी और उनका जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई, तो लूत अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेबस हो चुके थे। और फिर उस वक्त जाके ये जो दो फरिश्ते थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पे अल्फाज शायद आए होंगे। बहरहाल इन दो फरिश्तों ने वो अल्फाज बहुत ख़ास किस्म के अल्फाज हैं जो लूत अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे बोले थे, अब मेरे जहन से निकल गए हैं। बहरहाल उन फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये हम तक इन लन यसिलू इलैका फअस्रि बिअहलिका, ये अल्फाज हैं तो फरिश्तों के। हाँ, ये लूत अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी हैं। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? वो उस वक्त यानी जब बिल्कुल बेबस हो गए लूत अलैहिस्सलाम, तो फरिश्तों ने कहा कि कालू या लूत तो इन्ना रुसुल रब्बिक, ए लूत हम तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लन यसिलु इलैक, ये तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे, ये हम तक भी हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। फअस्रि बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल, तुम इस रात के हिस्से में तुम अपने अहलो अयाल को लेके निकल जाओ। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक, और तुम्हारी बीवी के अलावा किसी को पीछे ना छोड़ो। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, इनको पहुंचने वाला है इनके लिए जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है, वो इनको वो इस औरत को भी इस तो आपकी बीवी को भी मिलने वाला है जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया इस कौम के बारे में। इन्ना मौइदहुम सुबह, इन लोगों का जो वक्त तय किया है अल्लाह ताला ने वो सुबह है, यानी रात का वक्त था जब ये लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर पे हल्ला बोले हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ें, आप खुद अपने अहलो अयाल को, और याद रखें कि अहलो अयाल कौन होते हैं। अहलो अयाल वो होते हैं जो जो नबी पे ईमान लेके आए होते हैं, मोमिन लोग, जो वो सारे अहलो अयाल में शामिल हैं। तो आप उन्हें लेके निकल जाइए, और जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होगा, सूरज की किरण तुलू होगी, हम इनका काम तमाम कर देंगे। सुबह का वक्त इनके लिए मुकर्रर है। आगे लफ्ज आए हैं अलैसा सुबह बिकरीब। तो लूत अलैहिस्सलाम इतना हैरान हुए, उन्हें तो ये तवक्को ही नहीं थी कि इतना जल्दी इन पे अजाब आ जाएगा। तो वो कहने लगे अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह का वक्त तो करीब नहीं है, ये तो अभी चंद लम्हे बाकी हैं सुबह होने में। तो ये उनके लिए हैरत से वो बोलने लगे लूत अलैहिस्सलाम। बहरहाल वो निकले, वो लूत अलैहिस्सलाम निकल गए। तो फिर पीछे क्या हुआ? फलम्मा जा अमरुना, जब हमारे हुक्म का वक्त हुआ, जालना आलियाहा साफिलहा, हमने इनकी इस बस्ती को उठाया और उसे पलट के फेंक दिया। और फिर वह अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंजूद, हमने इन पे बारिश बरसाई, किसकी? आग की, गंधक की बारिश इन पे बरसाई। मुसव्वमतन इंदा रब्बिका, और ये तुम्हारे रब की तरफ से मुसव्वमा थी। वमा हिया मिन ज़ालिमीन बिबाईद, और ये जालिमों पर बरसने वाली थी। ये था जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब का कुछ तफसीली तज़किरा। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आया है, ये भी इतना वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आया है, ये भी बहुत मुख्तसर अंदाज में आया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन सारी कौमों के बारे में जिक्र करके एक इन तबसरा किया है इस सारी कौम के बारे में। और
वो तबसरा जो है ना वो देखने वाला है। वो क्या तबसरा है? 100 नंबर आयत में है। अच्छा, मगजूब कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने एक तबसरा किया है, और देखते हैं कि ये क्या तबसरा किया है अल्लाह ताला ने। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा नकुस्सुहु अलैक, इन सारे अंबिया के बारे में ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुछ बस्ती वालों की खबरें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। मिनहा काइम व हसीद वमा ज़लमनाहुम, हमने इन बस्ती वालों पे जुल्म नहीं किया था। वलाकिन ज़लमु अनफुसहुम, ये खुद अपनी जानों पे जुल्म करने वाले थे। यानी ये जो इनका हाल हुआ, ये खुद अपनी जानों पे जुल्म करने वाले थे। हमने इनमें अजाब दे के इन पे कोई जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपने लिए इस अजाब को मुकद्दर किया था। फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम, तो इनके खुदाओं ने इनकी कोई मदद नहीं की। अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते थे। मिन शैइन लम्मा जा अमरु रब्बिक, जब जब तेरे रब का हुक्म इन पे आया, तो इनके इन खुदाओं ने जिनको ये पुकारते थे इनकी कोई मदद ना की। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, और ऐसे ही होती है तेरे रब की पकड़ जब वो किसी बस्ती को, किसी कौम को पकड़ता है जब वो जुल्म कर रही होती है। इन अख़ज़हु अलीमुन शदीद, और बेशक उसका उसकी जो पकड़ है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शदीद होती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन खाफ़ अज़ाबल आखिरा, बेशक इसमें निशानी है उस शख्स के लिए जो आखिरत के अजाब से डरता हो। ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नास, ये वो दिन है जब हम लोगों को जमा करने का दिन है। वज़ालिका यौमुम मशहूद, और ये वो दिन है जब जिसको देखा जाएगा, जिसके बारे में गवाही दी जाएगी। वमा नुअख्खिरुहु इला इल्ला लिअजलिम मादूद, और हम मुअख्खर नहीं करेंगे इसको, मुअख्खर नहीं करते मगर सिर्फ ये जो अजाब है अल्लाह का, हम इसे मुअख्खर नहीं करते इल्ला लिअजलिम मादूद, सिवाय चंद वो मखसूस वक्त के लिए। हम मखसूस वक्त देते हैं हर एक कौम को, हर एक बस्ती को, उस वक्त तक के लिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। और ये जो अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह का अजाब है, उसे हम एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया है। वरना अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला जैसे ही कोई बंदा शिर्क करता, अल्लाह ताला की कड़क आती और उसे पकड़ लेती। जैसे ही कोई बंदा सूद खाता, अल्लाह ताला की तरफ से उसका चेहरा मसख कर दिया जाता। ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने एक महदूद वक्त मुकर्रर किया है, जिसकी वजह से जिस वक्त पे उसको अजाब दिया जाएगा। कुछ कौमों का वक्त इस दुनिया में आ चुका है, कुछ कौमों का वक्त इस दुनिया में अगर नहीं आया तो अनकरीब आखिरत में आ जाएगा। क़यामत के दिन, आखिरत के दिन आ जाएगा। तो ये तबसरा अल्लाह ताला ने किया है कौमों के वाक़यात, इसलिए अल्लाह ताला हमें सुना रहे हैं। और फिर एक बहुत अहम बात, कि जब तक किसी कौम में इस्लाह करने वालों की एक जमात मौजूद रहती है, अल्लाह ताला उस कौम में अजाब नहीं भेजते। वमा काना रब्बुका मुहलिकिल कुरा बिजुल्म व अहलुहा मुस्लिहून, और उसके अहल, उसके जो रहने वाले हैं वो इस्लाह करने वाले हैं, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देने वाले हैं और बुराई से रोकने वाले हों। एक जमात अगर उनके अंदर मौजूद हो तो अल्लाह ताला उस कौम को अजाब नहीं देते। और फिर अगर अल्लाह ताला उनको अजाब देते हैं तो अल्लाह ताला उसी उन्हीं लोगों को बचाते हैं जो ये इस्लाह करने का काम कर रहे हैं, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस उन्हीं लोगों को बचाते हैं। मुश्किल हालात में अहले ईमान के लिए कुछ हिदायत दी गई हैं। अगर कोई मुश्किल वक्त आए, हक की राह पर चलते हुए कोई मुश्किल वक्त आए, तो क्या करो? हक पर डटे रहो। अगर कोई मुखालफत की जाए तो उसके रद्द अमल में भी हक का दामन हाथ से मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी मुखालफत में हद से बढ़े तो तुम भी हद से बढ़ो, उन हदूद से तजावज़ करो जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। काफिरों की तरफ से कोई समझौता कबूल ना करो। ऐसा ना करो कि वो कहें कि कुछ रसूमात तुम हमारी अदा कर लो, कुछ रसूमात हम तुम्हारी अदा कर लेते हैं, और उनको खरा खरा जवाब दो, सीधा सीधा जवाब दो।
اور کہو کہ لکم دینکم ولی دینی، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تمہیں تمہارا دین جو ہے وہ مبارک ہو، اور میں اپنے دین پر ہی چلوں گا۔ یہ ان کو کورا جواب دو، ان کے ساتھ کسی بات پہ سمجھوتا نہ کرو۔ نماز کی پابندی کرو، یہ گناہوں کو معاف کر دے گی، یعنی ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نمازیں ہیں، یہ نمازیں ہیں یا کوئی بھی نیکی ہے، وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ مومنین کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ یوسف، سورہ یوسف کے بارے میں میرا خیال ہے اب کل ہی بات کریں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ، سورہ یوسف پوری جو صورت ہے نا، اس کے 12 رکوع ہیں تقریباً، تو ان 12 رکوعوں میں سے 11 رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا کچھ حصہ 12ویں پارے میں ہے، کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ قصہ سارا اکٹھا ہی ہونا چاہیے ایک ہی نشست میں، تو اس لیے ہم اس کو کل ہی شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست ہم اتنی رکھتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کا کوشچن آنسر، اگر کوئی کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔